when integrals are negative and when integrals are positive, right? So this was the last topic of the previous class. Now I showed you using an example of function y equals to sin x. Now if you integrate between 0 and pi, what area will you get? Will you get positive area or negative area? This area. Positive. Positive. Reason? This area is above x-axis. That's why you'll get positive area. And how much area did you get after actual integration? 2 units. Clear? Okay. Yes, sir. Whereas if you integrate the same function between pi and 2 pi, the area will be negative. The reason is graph is below x-axis. So this will be negative area, right? And if you do integral, if you take out the integral, you will get that area to be -2. And obviously you got the magnitude same, right? This you get this area you got as +2, and this area you got as -2. The reason is what? Why both are of same magnitude? Because they are identical. The reason is identical. Can you see? See, this Yes, sir. is same as this. If you look at the size and shape, only thing is this is inverted. Clear? What about integral between 0 and 2 pi? You'll get area as net area 0. 0. Why? Because this is positive plus negative becomes 0. This is Clear? negative. 0. Okay. Now if I take the integral between 0 and 3 pi by 2, what will I get? Area is positive or negative? This area. 0 and 3 pi by 2. What will be this area? Tell me. Positive. It will be positive. Why? Because the Positive. negative is little bit smaller than positive area. Exactly speaking, it is half. Clear? So overall you will get positive area. Clear? If you integrate from pi by 2 to 2 pi, what will you get the area as? Negative. Negative. The reason is negative is more than positive. Exactly speaking, negative is double of positive. That's why you'll get negative area. Clear? So that is what integration is. Okay. So let us proceed to next topics. Now, I already told you many times that if a particle is projected upwards with velocity u, if a particle is projected upwards with initial velocity u, we know a lot of things of this situation. What we know here? We know that time of ascent is U by G. u by g. We know that time of descent is u by. U by G. We know that time of flight. Sorry, let me just write TAT. Now, the time of ascent is u by g. Time of descent is u by g. Time of flight is 2u by g. 2u by g. What else do you know here? Apart from time of ascent, time of descent, and time of yeah. What else do you know? What else? H. Do you know? H. What is H. H? H is Maximum Root height. of maximum 2 height. G. No, it is u square by U square. 2g. This is 2 what? G. This is what? Vertically. What we are talking about here? Vertically Projected bodies. projected bodies. Or we can also call this vertical projectiles. Vertical projectiles. Clear?
What else do you know here? What else do Yes, you sir. know? Apart from these things, what else do you know? You know these things. Apart from these, what else do you know? Final velocity. Oh, final velocity will be equal to what? Okay, tell me. 0. No, no, no. In the Root of 2gh. velocity is zero. In the upward journey, the final velocity is zero. Correct? In the upward journey, final velocity is zero. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. But if you say final velocity in the whole journey, Root of 2h by g. no, 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 no. In the at the end of the journey. What do you mean by at the end of the journey? Reaching the ground. On returning to ground at the end of the journey. Say root 2gh. No. So see, u is not given. What is given in the question? Only u is given. You projected upwards with what? Initial velocity u. That's all. And what else do you know? You know that acceleration due to gravity is downwards. Acceleration due to gravity is downwards, and its value is g. Only these two things you know. Only these two things you know. So answer should be in terms of only these two things. So at the end of journey or on returning to ground, the velocity is, this is also called final velocity. Final velocity of whole journey. Do you agree? Yeah. So tell me, what will it be? So final velocity of upward journey is zero. I agree. But what is the final velocity in the whole journey? Root 2gh. No, no. See, answer should be only in terms of u and g. Only u and g Can are. we use t? Huh? So can we use t? No. Sir, it Can would any? have been u. No, no. Can anyone tell me what will be the velocity when it returns? We already discussed that. What will be the velocity on returning to ground? Can anyone tell me? Hmm. Hmm. Can anyone tell me? Sir, u U or minus u? minus u. Minus u. It will be minus u. So final velocity will be what? It will be minus u. So it will be minus u. Why minus u? Because see, with u you projected, so on coming back also the magnitude of velocity will be same. Why? Because kinetic energy is conserved, right? If kinetic energy is conserved, you know, by kinetic energy while going up should be, or in the starting must be equal to the kinetic energy at the end of the journey. Okay. And second thing is the direction of velocity when it returns will be what? Downward or upward? It will be Minus u. downward like this. This will be the direction of v. Do you agree? So v is equal to minus u. Agreed? Clear? Yes, sir. We already used this. Not clear, sir. Sir, can you formula here? What? Sir, can you use any formula here? Your voice is not clear. Sir, can you do any formula here? Can you type? You type your question.
Okay, next. What formula? See, it is a simple question. What is the velocity of the particle when it returns? If you project it with u in the upward direction, it will go up, it will stop there, and it will come back, and it will reach the ground with equal and opposite velocity. Right? That's why v is equal to minus u. Clear? Okay. Yes, sir. Okay. Next question. Now, let me show you the journey. This is the journey of the projectile. So this is the ground again. So let me just write it on the left. So this is the upward journey. Okay. So I'll write it like this, and this is the downward journey. Now, I'll ask you some questions. You tell me. In the upward journey, what do you mean by upward journey? So when it is Vertically. When the body is projected up, Ascent. During ascent. Okay. In the upward journey means what? During ascent. The direction of velocity is, tell me, the direction of velocity is Upward. upwards. The direction of acceleration is downwards. downwards. Do you agree? So down. And the fact is the direction of acceleration is always downwards. Okay, is downwards. Okay. Wow. So the direction of velocity is upwards, the direction of acceleration is downwards. Okay. Now, at the topmost point, what do you mean by topmost point? Where Greatest height. where height is highest. maximum, At y equals to h. Clear? Upward journey मतलब y equals to 0 से लेके during ascent, y equals to edge h तक. Okay. Now at y equal to h, the velocity is 0. 0, 0 क्योंकि वहां पे रुक जाएगा. ठीक है. And the direction of acceleration is Positive. Negative. Negative. always negative. समझ गए? Is negative. समझ गए? ठीक है. जी sir. Now, in the downward journey, downward journey मतलब क्या? During Descent. Descent. Sir. Descent. during descent. सर इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड क्यों होगा? एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड होगा. हमेशा डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन. अर्थ कहाँ खींचेगी कोई भी प्रोजेक्टाइल को? ऊपर खींचेगी कि नीचे खींचेगी? नीचे. तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. समझ में आई बात? तो ये y equals to h2, y equals to y equals to 0. ये है ना? 0. 0, y equals to 0. तो बोलो the velocity is maximum, the direction of velocity is negative. Downward.
नेगेटिव सर। नेगेटिव, और एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव होगा। समझ में आई बात? क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ जो भी हुआ अभी। तो एसेंट, ये यहाँ पे एसेंट लिखते हैं और यहाँ पे सर हाँ, सर if velocity is 0 then acceleration must be constant. if velocity is 0, Acceleration must be constant. no need. See, velocity 0 कभी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने दो या वेरिएबल रहने दो या एक्सेलरेशन भी 0 रहने दो, it doesn't matter. I'll explain that. Wait, I'll give you some examples. ये है ascent और descent, समझ गए? ascent एंड descent. तो ascent में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ascent में? H. नहीं, डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू V square by 2G. नहीं, वो छोड़ दो, रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। अब बात करो पॉजिटिव या नेगेटिव की। तो एसेंट में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है। डिसेंट में नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव ही होगा ना। Negative. डिसेंट में भी तो ऊपर ही रहेगा, वो जमीन के अंदर थोड़ी ना जाएगा। सी, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हो आप? इनिशियल पोजीशन से ले रहे हो ना। समझ में आई बात? तो आपका जो इनिशियल पोजीशन है, स्टार्टिंग Yes, पॉइंट, sir. ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, उससे अगर देखें तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव के नेगेटिव? हमेशा पॉजिटिव, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। समझ में आई बात? क्लियर? जी सर। देखो, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इतना है, इधर जब रहेगा डिस्प्लेसमेंट इतना है, इधर जब रहेगा डिस्प्लेसमेंट इतना है, मैक्सिमम हाइट पे डिस्प्लेसमेंट इतना है, आते वक्त कितना है डिस्प्लेसमेंट? इतना है। जब इधर रहेगा इतना है, जब इधर रहेगा इतना है, जब इधर रहेगा इतना है। हमेशा डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन में है? देखो, विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ऊपर की तरफ है। समझ में आई बात? क्लियर? एनी डाउट? वेलोसिटी की बात करो। अच्छा, डिसेंट इधर लिखते हैं और बीच में एक और लिखते हैं हाईएस्ट पॉइंट। बीच में एक और लिखते हैं हाईएस्ट पॉइंट। इज एवरीबॉडी हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. सर। सुनाई दे रहा Yes, है? sir. तो ये है हाईएस्ट पॉइंट। ये क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे भी क्या होगा? 0। पॉजिटिव ही होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, वेलोसिटी एसेंट पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे 0। 0. 0। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। और डिसेंट पे Negative. वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो यार समझ में आई बात? ओके। जी सर। तो नेक्स्ट क्या आएगा? एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या आएगा? एक्सेलरेशन। ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या है किस्सा बोलो? सर ये Always negative. ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आई बात? एक्सेलरेशन होगा ऑलवेज नेगेटिव। दिस थिंग इज क्लियर टू यू? ये क्लियर है ना? जी सर। Yes, sir.
ओके, तो एक चीज समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, उस टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या जीरो भी हो सकती है। समझ में आई बात? क्लियर? सर Yes, sir. सर अगर हम वाटर लें तो डिसेंट कर मतलब अगर हम डिसेंट वाटर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। अगर आप आपका रेफरेंस पॉइंट टॉप में लोगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। समझ गए? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट कैलकुलेट कर रहे हो? इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन के ऊपर जब भी है, जब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, देखो। सपोज आप एक टावर पे है, सपोज आप एक टावर पे है। टावर की हाइट क्या है ग्राउंड से? h। टावर की हाइट क्या है? टावर की हाइट क्या है? h है। और यहां से आपने लॉन्च कर दिया आपका पार्टिकल, यहां से लॉन्च कर दिया आपने पार्टिकल, ठीक है? क्लियर? एक सेकेंड। हाँ, तो समझ में आई बात? यहां से यू से लॉन्च कर दिया आपने, ठीक है? क्लियर? जी सर। तो थोड़ा जी सर। मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, जस्ट फॉर राइटिंग। तो यू से लॉन्च किया आपने, और यहाँ पे इसको एक रेफरेंस, कुछ एक पोजीशन ले लेते हैं इसको। ये जो ब्लू लाइन है आपकी, ये क्या है? ये जो ब्लू लाइन है, डॉटेड लाइन, रेफरेंस पॉइंट। इसको रेफरेंस लेंगे और ये होगा जीरो, ये होगा H। जीरो। जीरो, y इक्वल्स टू जीरो। समझ में आई बात? y इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? और ये जो टावर है, टावर की हाइट है h। इसकी हाइट क्या है? h है, ठीक है? तो ये वाला h है आपका। तो ये येलो लाइन क्या हो जाएगी? ये येलो लाइन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू ग्राउंड वाली, बोलो y इक्वल्स टू, बोलिए, H। जस्ट थिंक एंड टेल। y इक्वल्स टू, H। okay, let me take it small h, let me take it as small h। तो क्या हो जाएगा ये? y इक्वल्स टू, बोलिए। हाँ, h होगा कि माइनस h होगा? सोच के बोलना। सर माइनस। माइनस h, रीजन क्या है? क्योंकि हाँ? हमने जिस रेफरेंस पॉइंट से रेफरेंस लिया पॉइंट से नीचे है। नीचे आ रहा है। ये जो रेफरेंस पॉइंट है उसके नीचे है कि ऊपर है? सर नीचे। नीचे है, इसलिए क्या लेना है? माइनस h लेना है। समझ गए? अच्छा, इसकी जर्नी कैसी रहेगी? पहले ऊपर जाएगा, कुछ हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, लिखना था, फिर मेरा लिखना था। सबसे बड़े ऑन भैया जैसा करेंगे। नहीं समझ में आया? पहले ऊपर जाएगा, जी सर। फिर कुछ हाईएस्ट पॉइंट पे रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, ठीक है? अब वापस आने के मैं दो अलग अलग पार्ट लिखता हूं। एक ये ग्रीन वाला पार्ट, फिर ये ब्लू वाला पार्ट, फिर उसके बाद यहां से ये लाइट पिंक वाला पार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे तीन तीन डिफरेंट सेक्शंस है। समझ गए? let us call them
इसे एसेंट बोलते हैं, इसको एसेंट बुलाते हैं, ठीक है। और ये ब्लू वाले को Descent. डिसेंट टिल क्या, कहां तक है वो डिसेंट? Sir, y equals to 0. ओके, डिसेंट टिल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? वहां आके रुकेगा? नहीं रुकेगा ना, क्योंकि और भी नीचे जा सकता है, तो और भी डिसेंट है यहाँ पे, तो ये होगा डिसेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ Projection. प्रोजेक्शन टू ग्राउंड। समझ गए? ठीक है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको सी। समझ गए? क्लियर? तो मेरे को यहाँ पे 3 पार्ट्स में मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा जर्नी को, ए बी। ओके, आई यूज द सेम कलर। बी कौन सा कलर था? ब्लू। सी कौन सा था? ये वाला। समझ में आई बात? क्लियर? तो 3 पार्ट्स है जर्नी के, ठीक है। अभी लेट मी आस्क यू, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्ट ए में डिस्प्लेसमेंट है, टेल मी, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा कि जीरो रहेगा? पॉजिटिव। एक काम करूंगा मैं, एक काम करूंगा, ये ए बी सी तो 3 अलग अलग है। एक और ले लेते हैं, डी। डी क्या है? डी क्या है? The total height. डी इज हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला डी ले लेते हैं, ठीक है। डी क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। डी क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं एक और ले लूंगा डी, यहाँ पे एक और ले लूंगा डी। अभी मेरे को बोलो आप, यू जस्ट थिंक एंड टेल मी, डिस्प्लेसमेंट, पहले जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले सेक्शन पे, सेक्शन ए में जो डिस्प्लेसमेंट है, वो पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा? सेक्शन ए पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेक्शन बी पे Positive. पॉजिटिव। 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 सेक्शन डी पे, नेगेटिव। डी पे डी Zero. पॉइंट है, 0. पॉजिटिव सर। पॉजिटिव पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ओके, 0। अच्छा, सी पे नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। क्यों? जमीन के अंदर चला गया, इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके नीचे चला गया, इसका मतलब क्या? वो है नेगेटिव। समझ में आई बात? जी सर. यस सर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी सेक्शन ए में क्या है? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। सो आई जस्ट कॉपी दैट, पॉजिटिव है। और कहाँ है पॉजिटिव वेलोसिटी? बी में। सिर्फ सेक्शन ए में ही पॉजिटिव है, और कहीं है पॉजिटिव? सर No. बी में नहीं। क्यों पॉजिटिव नहीं है? बी में तो रिटर्न कर रहा है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। नेगेटिव। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है ना, तो नेगेटिव। समझ में आई बात? जी। देखो डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का बी में? नेगेटिव। क्लियर? ओके, अभी दिखाई दे रहा है ना? जी सर। अच्छा, सी पे? सी पे नेगेटिव। नेगेटिव। और डी पे? 0। 0। 0। डी पे 0, डी पे है 0, राइट 0 ही है। समझ में आया? नेक्स्ट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव। एनी डाउट इन दैट? व्हाई ऑलवेज नेगेटिव? क्योंकि डायरेक्शन डाउन. जब तक कोई भी प्रोजेक्टाइल हवा में होगा, जब तक कोई भी प्रोजेक्टाइल हवा में होगा, उसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। देखो, ए इज ऑलवेज
वर्टिकली डाउन। समझ में आई बात? एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You have to be very careful about signs. पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है या जीरो है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। समझ में आया? ठीक है, ओके। अच्छा, इस केस में टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? U divided by G. हाँ, वेरी गुड। इन द केस above, in the case above, time of ascent is how much? U divided U by by G. U by G, because it is exactly same। जो जमीन से लॉन्च कर रहे थे, जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने, पोल के ऊपर से भी लॉन्च करेंगे आप, टावर के ऊपर से भी लॉन्च करेंगे तो उतना ही टाइम लेगा। ये क्या है? ये टावर है, ये आपका टावर ऑफ हाइट h है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? बट टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? देखो यहाँ पे U by UG plus टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट ये सारा है, ब्लू लाइन और लाइट पिंक कलर का जो लाइन है, दो मिला के यहां से लेके यहां तक आने तक सारा डिसेंट ही है। समझ में आई बात? यहां से लेके यहां तक ये सारा डिसेंट ही है। डू यू अग्री? G, sir. sir, तो टाइम ऑफ डिसेंट कैसे मालूम करेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट कैसे मालूम करेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट मालूम करने के लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सो वी नीड टू फाइंड दिस, वी नीड टू फाइंड TD। ओके, तो TD फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? U. U से इनिशियल वेलोसिटी क्या है डिसेंट के लिए? डिसेंट के लिए 0 जीरो। इनिशियल Zero. वेलोसिटी क्या है? जीरो। 0. जीरो। डू यू अग्री? तो u इक्वल्स टू 0 यूज करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन कितना लोगे? तो माइनस G माइनस जी इज ऑलवेज माइनस जी। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? a इक्वल्स टू माइनस जी। समझ में आई बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट। और क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट s। तो जहां से वो डिसेंट में जा रहा है नीचे, क्या ऊपर? डिसेंट में कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे क्या नीचे से ऊपर? फिर ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे? नेगेटिव। Negative. समझ गए? अच्छा, ये हाइट कितनी होगी? 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 लेट मी जस्ट राइट डाउन। ये वाली, यहां से लेके यहां तक, ये हाइट कितनी होगी? बोलो। उसको हम लेते हैं कैपिटल H। क्या लेते हैं? कैपिटल H। कितनी होगी? U स्क्वायर बाय 2G। समझ में आई बात? यस सर। ये हाइट जो होगी U स्क्वायर बाय 2G। तो अगर इसको यहां से लेके यहां तक जाना है, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? स्मॉल h प्लस कैपिटल H, दोनों ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट? यस सर। देखो, यहां से यहां तक कैपिटल H है, यहां से यहां तक स्मॉल h है, ये दोनों ट्रैवल करना पड़ेगा। डू यू अग्री?
जी सर। तो S इक्वल टू क्या होगा? माइनस H माइनस स्मॉल h. डू यू अग्री? माइनस H माइनस स्मॉल h. वाई? यहां से यहां तक क्या होगा? माइनस कैपिटल H होगा. यहां से यहां तक क्या होगा? माइनस स्मॉल h होगा. तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा? बोलिए. माइनस एच माइनस माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h. डू यू अग्री? जी सर। ओके. तो अभी इक्वेशन लिखो. इक्वेशन क्या है? बोलिए. माइनस यू स्क्वायर बाई 2g माइनस यहाँ पे येलो में कर S is equal to UT plus दो. S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S क्या लोगे? माइनस half H AT square. माइनस एच माइनस माइनस H माइनस H इक्वल्स टू U कितना लोगे? 0. अग्रीड? माइनस Yes, sir. 0. हाफ माइनस जी माइनस क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव है एक्सेलरेशन. G T D स्क्वायर. स्क्वायर. यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं? सर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g माइनस एच माइनस कैपिटल H होगा माइनस यू स्क्वायर बाय 2g. तो क्या आएगा? माइनस यू स्क्वायर बाय 2g माइनस H इक्वल्स टू माइनस हाफ G TD स्क्वायर. अग्रीड? अभी क्या होगा बोलो? नेक्स्ट स्टेप. माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो यू स्क्वायर बाय 2g प्लस H इक्वल्स टू 1 बाई हाफ टी स्क्वायर G TD स्क्वायर आएगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? बोलिए. ट्रांसपोज हाफ जी टू लेफ्ट साइड. तो 2/g इधर आ जाएगा. यू स्क्वायर बाय 2g प्लस H. ये मल्टीप्लाई कर जाएगा इसको. इक्वल्स टू क्या आएगा? टी डी TD स्क्वायर. तो TD कितना आएगा? बोलो. 2 बाई जी इंटू यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड बाई 2g. इसका सारा क्या आएगा? रूट आएगा. अग्रीड? समझ में आया? क्लियर? समझ में आया ये स्टेप? कुछ नहीं, यस सर. जस्ट रूट को उधर ले लिया मैंने बस. जी सर. यस. ओके, तो ऐसे करना पड़ेगा. ठीक है? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट ड्रॉप्ड बॉडीज. ड्रॉप्ड बॉडीज के बारे में बात किया था मैंने ऑलरेडी. व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप्ड बॉडीज? Which are dropped from some height. इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ दिया किसी को कुछ हाइट से, तो उन्हें बोलते हैं ड्रॉप्ड बॉडीज. तो ड्रॉप्ड बॉडीज की अगर बात करें तो ड्रॉप बॉडीज को हमेशा कुछ हाइट से ड्रॉप करना पड़ेगा अबव ग्राउंड. ये ग्राउंड है, ठीक है? ये कुछ हाइट है और उस हाइट से ड्रॉप कर दिया आपने. तो ये है y इक्वल्स टू h. उससे ड्रॉप कर दिया. फॉर एग्जाम्पल एक टावर से ड्रॉप कर दिया. दैट इज ऑल्सो एक टावर है. तो ये टावर से आपने अगर ड्रॉप कर दिया बॉडी को, तो यू कैन कॉल इट एज ड्रॉप्ड बॉडी. ठीक है? सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ टावर ऑफ, बोलो. इधर लिख देते.
नीचे लिखते हैं। दिस इज ए टावर ऑफ हाइट h, समझ में आया? जी तो यहाँ से ड्रॉप कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप? Sir, initial velocity. इनिशियल when वेलोसिटी, u equals to 0. या यहाँ से ड्रॉप कर दिया। पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है? कोई भी पार्टिकल है छोटा सा, इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना? ओके। अभी इसके बारे में क्या क्या पैरामीटर्स बोला था मैंने? इसके बारे में क्या क्या पैरामीटर्स डिस्कस किए थे हम लोग? सर किसके बारे में? ये जो ड्रॉप्ड बॉडी के बारे में, एक ऊपर चल रहा है भाई। टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम फॉर द बॉडी टू रीच To drop Ground. down the ground. उधर चलने ना ऊपर। क्या होगा वो? Root 2h by g. अंडर रूट 2h by g, अंडर रूट 2h by g, याद है? ठीक है। और क्या डिस्कस किया था? वेलोसिटी v. of the body on reaching ground. क्या है? Root 2gh. Under root 2g. रूट 2gh। और आप लोग जो है ना इसको डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो। डायमेंशनली मतलब यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या है इसके? 2h का यूनिट क्या है? h का यूनिट क्या है? मीटर्स। Meter. g का यूनिट क्या है? Meter per second square. Meter per मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है? और इसका रूट क्या आएगा? Sir, second. सेकंड आएगा। रूट क्या आएगा? सेकंड। तो इसका रूट क्या आएगा? सेकंड आएगा। तो इट मैचेस विद टाइम, तो सही है क्या नहीं? क्लियर? इधर का देखो, इधर का जी ये वाला देखो अभी। ओके, ये वाला देखो इधर। ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसका देखो। जी का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच का क्या है? मीटर, ठीक है? तो क्या हो गया वो? Meter per second. मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका रूट क्या आएगा? Meter per second. मीटर पर सेकंड आएगा। समझ में आई बात? इसका रूट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड आएगा। समझ में आया? तो अगर सर, yes, sir. हाँ, सर √2gh और -u रूट 2gh, और u सॉरी, -u can you just type? Your voice is not clear. Okay, someone asked one doubt. If velocity is 0, then acceleration must be constant. Is it true or false? Can anyone tell? If velocity is 0, then acceleration must be constant. Is this statement true, false, incomplete, or what? Can anyone tell me? कोई आंसर करेगा? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, फॉल्स है, इनकम्प्लीट है, क्या है?
Sir, it Sir, is true. it is true. ओके यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, किसी ने बोला। तो एक्चुअली अगर आप कंसिडर कर रहे हो डायरेक्शन, तो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। यू आर राइट, तो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, ठीक है। So here you should have minus sign also if you are considering direction. That is correct. हाँ, ये वाला statement बोलो. If velocity is 0, then acceleration must be constant. Yes, it is true. So this is not actually Sir, true. false. When you are saying velocity is constant, what are you saying? Are you talking about instantaneous? Or are you saying always velocity is 0? It depends, right? देखो, velocity 0 है. Velocity, if Zero. velocity is 0 all along मतलब क्या? Always. Always. समझ गए, हमेशा 0 है. Then acceleration Acceleration is 0. is what? Constant. But if Sir, it will be in which direction? it depends. If instantaneous velocity is 0, Sir, वो वाला average velocity है. If velocity is 0 all along. नहीं, एवरेज नहीं, हमेशा अगर वेलोसिटी 0 है, समझ गए, मतलब जस्ट रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब अब देखो 0 है, कुछ देर के बाद देखो 0 है, जब भी देखो 0 है, समझ गए। उस केस में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, समझ गए। यहां पे इफ इंस्टेंटेनियस velocity is 0, then the acceleration, बोलो क्या लिखूं, बोलो, then the acceleration Is 0. no negative. no need not be constant, समझ में आई बात, समझ गए। कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ में आई बात। I'll give you जी सर. example. Okay. Just let me give you an example. If एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं बहुत सारे कैसे समझ में आएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज v इक्वल्स टू 10t क्यूब, समझ में आई बात। v इक्वल्स टू 10t क्यूब, तो a क्या हो जाएगा, बोलिए 20t square. 30t square. 30t square. 30t square. Do you agree? Okay? समझ में आया? जी सर. अच्छा, तो v ऑफ 0 क्या होगा, 0 सेकेंड्स पे क्या होगा वेलोसिटी, बोलो जल्दी से बोलो। 0. Why? Because if you substitute t equal to 0, you'll get 0. And what about a of 0? 0. समझ में आया? अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है। डू यू एग्री? Yes, sir. Okay, second example. v equals to 10t. अब बोलना a equals to क्या है,
10. A equals to 10. ओके अभी बोलो v ऑफ 0 क्या है? 0. 0. a ऑफ 0 क्या है? 10. 10. 10. हमेशा 10. a ऑफ 0 क्या है? v ऑफ 0 क्या है? 0. एंड a ऑफ 0 क्या है? 10. 10. Agreed? Okay. जी सर. Next. Third example. v equals to minus 20. a कितना आएगा? Then minus. minus 10. Minus 10. ओके तो v ऑफ 0 कितना आएगा? 0. 0. a ऑफ 0 कितना आएगा? minus 10. Minus 10. Now what did you conclude here? v of 0 रहने से a of 0 रहना जरूरी नहीं है. Do you agree? जी सर. जी सर. v 0 होने से a 0 होना जरूरी नहीं है. a 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. इट मे बी 0, मे नॉट बी 0. क्लियर? जी सर. बट सर हाँ बोलो. सर अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी मतलब कुछ कांस्टेंट या कुछ हो सकता है? हाँ वो बताऊंगा. रिवर्स. हाँ, वो बताऊंगा. अच्छा नेक्स्ट. इफ फोर्थ एग्जांपल v 0, इसका मतलब क्या? v of t is 0. डिस्प्लेसमेंट. v of t is ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. 0. v हमेशा 0 है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सर 0. Constant. 0 ही होगा क्योंकि 0 का डेरिवेटिव 0 आएगा. तो देयर इज अ डिफरेंस इन सेइंग v of t is 0 at some point of time और v of 0 is always 0. ये क्या है? v is, इसकी मीनिंग क्या है? v is He is always 0. always 0. यहाँ पे v at is time not always सम 0. पॉइंट ऑफ टाइम. Sometimes 0. It is 0 at particular time. समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी है. समझ गए? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट भी है. अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर कांस्टेंट. नहीं यहाँ पे देखो सर वेरिएबल. वेरिएबल Sir, है. variable. वेरिएबल. तो एक और चीज यहाँ पे आपको कंक्लूजन ये मिल रहा है कि अगर वेलोसिटी 0 है इंस्टेंटेनियस, उस टाइम पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की जरूरत नहीं है. एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है. समझ में आई बात? जी सर. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? सर कांस्टेंट. कांस्टेंट. और यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट. तो देखो वेलोसिटी 0 होने पे यहाँ पे क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में. अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है. समझ में आई बात? जी सर. यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल है. ठीक है, ठीक. ओके. नाउ फिफ्थ एग्जांपल इज, आपने क्या बोला? इफ वेलोसिटी इज 0, राइट? क्या बोला आपने? वेलोसिटी इज कांस्टेंट बोला आपने. यस सर. If velocity is constant, then acceleration must be 0. Must be 0. समझ में आया? जी सर.
ठीक है, इफ अ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो. रीजन? सर क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करने पे हमें जीरो हमें जीरो आएगा. Because change in कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो. जीरो. ओके, ये क्या आएगा? जीरो आएगा. क्लियर? ओके. Any other doubt? These kind of doubts? Okay. Any other doubt? Sir, if A is always 0. If A is always zero, V is always constant. अच्छा, ऑलवेज जीरो को लिखते कैसे हैं? ऐसे, a of t equals to 0, then v is कांस्टेंट. Always a constant. constant. A constant. कैसे लिखते हैं उसको? v of t is some constant k. समझ में आई बात? ओके. जी सर. एक और स्टेटमेंट, if v is variable, if v is variable, then a can either be Constant or variable. a constant or a variable. एग्जाम्पल ऊपर है. फर्स्ट एग्जाम्पल में v वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है. सेकेंड एग्जाम्पल में v वेरिएबल है बट a कांस्टेंट है. समझ में आई बात? क्लियर? यस जी सर. क्लियर? एनी अदर स्टेटमेंट यू वांट टू मेक और आस्क? ओके ओके. सर नेगेटिव और पॉजिटिव का बताना. हाँ, When V negative. v can be either positive or negative or zero. When acceleration is जीरो. जीरो. ये पहला स्टेटमेंट है. एग्जाम्पल बताओ. एग्जाम्पल बोलिए. सर वेलोसिटी इक्वल्स टू -10. हाँ, नहीं नहीं नहीं. एग्जाम्पल, ए पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है. तो -20. नहीं नहीं नहीं. ए पार्टिकल मूविंग लेफ्ट और राइट with constant स्पीड. समझ में आई बात? एक पार्टिकल है कुछ, राइट पे या लेफ्ट पे कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है तो क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. जीरो. और एट रेस्ट देखो, अगर राइट पे जा रहा है तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा. राइट? उसका वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, वो भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं. तो अगर राइट पे जा रहा है, तो अगर राइट पे वो जा रहा है तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव. राइट? लेफ्ट पे जा रहा है तो वेलोसिटी इज नेगेटिव. राइट? अगर रेस्ट पे रहा तो वेलोसिटी इज जीरो. इन सारे केसेस में एक्सेलरेशन क्या है?
सर 0. 0 है, क्यों? 0. क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन तो 0 ही होना चाहिए. Yes. क्लियर? Yes. अच्छा, velocity can either be positive or negative or 0 when acceleration is positive. Acceleration is positive. समझ में आई बात? Acceleration is positive. समझ में आया? एग्जाम्पल बोलो. Example. A particle for which v of t equals to 70 plus 10. ठीक है, समझ में आई बात? जी जी सर. सर. इसमें ऑब्जर्व करो आप. a of t क्या होगा? 10 10 सॉरी, a of t कितना आएगा? 7. ये क्या है? 7. पॉजिटिव है. पॉजिटिव. क्लियर? ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको Yes. चेंज करता हूँ थोड़ा. लेट अस टेक 70 minus 70 minus 10 लेता हूँ. ठीक है, समझ में आया बात? अच्छा, वेलोसिटी एट 0 क्या होगा? वेलोसिटी एट 0 सेकेंड्स -10. -10. वेलोसिटी एट 10/7 सेकेंड्स क्या होगा? सर 0. 0. 0. वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स क्या होगा? 4. 4. अग्रीड. बट एक्सेलरेशन तो हमेशा 7 ही होगा. 7 ही होगा. It is rated. तो यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन क्या होगा? 7. एक्सेलरेशन ऑफ 0 क्या है? 7. एक्सेलरेशन एट 10/7 क्या है? 7. 7. एक्सेलरेशन एट 2 क्या है? 7. तो ये क्या प्रूव करता है? देखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने पे वेलोसिटी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी 0 हो सकती है, वेलोसिटी 4 हो सकती है. वही स्टेटमेंट है ऊपर, दिखाई दिया? समझ गए? Yes sir. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली यू कैन मेक, आई नीड नॉट मेक. बोलो. Velocity can be either positive, negative or 0 when acceleration is नेगेटिव. negative. कांस्टेंट. नहीं, वो तो हो गया. ये नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं. इसके लिए क्या करेंगे? इधर माइनस लेंगे, इधर क्या करेंगे? माइनस लेंगे, और इधर लेंगे प्लस. समझ में आया? तो एक्सेलरेशन कितना है? -7. -7. इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है. यस सर. v of 0 क्या आएगा? v of 0 10 आएगा. जी सर. v of 10/7 0 आएगा. और v of 2 क्या आएगा? सर -4. -4 आएगा. समझ गए? और एक्सेलरेशन सब केसेस में क्या है? -7. -7 है. तो लेट मी जस्ट मूव दिस. -7 -7 -7 -7. तो देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव जब है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है. डू यू एग्री? यस सर. ओके, उसका भी एग्जांपल देख लिया हमने. और एक स्टेटमेंट बनाइए.
और एक स्टेटमेंट, फिर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का बना सकते हैं। हाँ सेम थिंग। जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड है, वैसे ही जो है ना वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। नाउ ये पर्टिकुलर एग्जांपल में कैन यू टेल मी इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कैन वेलोसिटी बी पॉजिटिव, नेगेटिव? समझ गए? देखो यहाँ पे लिखूंगा, मतलब if acceleration is, if velocity is positive, if velocity is positive, then acceleration may be either positive नेगेटिव और जीरो। एग्जाम्पल आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल दे दो, v ऑफ t का कुछ एग्जाम्पल दे दो। और एक्सेलरेशन कोई डायरेक्ट कनेक्शन। Can you please type? Your voice is not clear. Can anyone give one example for this? V of t. सर t क्यूब। Okay, t क्यूब तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन क्या आएगा? 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन आएगा 3t स्क्वायर। तो क्या आएगा? V of 0 is 0, A of 0 is 0. और next example, V of t equals to माइनस t माइनस टी और माइनस 10t ले लो, कुछ भी माइनस 10t। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? -10। -10. तो एक्सेलरेशन हो गया -10, एक्सेलरेशन एट टाइम t हो गया -10। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t। ओके, तो बोलो v ऑफ 0 क्या है? फिर 0 A ऑफ 0 क्या है? -10। -10 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? लास्ट, v ऑफ t इक्वल्स टू 10t। तो a ऑफ t क्या आएगा? 10 आएगा। तो v ऑफ 0 क्या है? 0। अच्छा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव था ना ऊपर एग्जाम्पल। यस सर। तो हम लोग एक काम करेंगे, +1 लगा लेते हैं। ठीक है, जी सर। इधर +1 लगा लो, इधर +1 लगा लो, इधर +1 लगा लो, ये आएगा 1 1 1। ठीक है, क्या आएगा? 1 1 1। तो ये क्या आया? एक्सेलरेशन इज 10। तो देखो वेलोसिटी जब पॉजिटिव है ना, जब एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखना, और आप लोग बोलो क्या करें इस स्टेटमेंट में, क्या चेंज करें, आप लोग बोलिए। यू टेल मी। इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव then acceleration may be either positive, negative or 0। तो क्या चेंज करूं यहाँ पे? t क्यूब -1। तो ये क्या आएगा? -1 समझ में आई बात? -1 -1 -1।
तो देखो जब भी वेलोसिटी नेगेटिव है एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? If velocity is 0, then acceleration may be positive, negative or तो इसके लिए क्या करें, ये निकाल देते हैं, ठीक है। अभी ये सारे क्या आ जाएंगे? जीरो जीरो जीरो। तो देखो वेलोसिटी जब जीरो है, जब एक्सेलरेशन जीरो भी है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। क्लियर? समझ में आई बात? ओके समझ में आया ना? यस सर। तो जनरली थोड़ा कंफ्यूजन होता है Yes, कुछ sir. लोगों को कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो सकती, या एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं हो सकती। बट ऐसा है नहीं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है और कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। और कुछ भी जीरो हो सकता है इंस्टेंटेनियसली। देखो इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी जीरो हो सकती है इंस्टेंटेनियसली, बट जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो हो। समझ में आई बात? yes sir. एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली जो है ना जीरो होनी चाहिए, या Yes, कुछ भी कांस्टेंट होनी चाहिए, 0 या 1 या 2 या 3 या 10 या 100 या -100, इट डजंट मैटर। बट अगर टाइम के साथ कांस्टेंट है ना वेलोसिटी, तब ही एक्सेलरेशन जीरो होगा। समझ गए? जी सर। अच्छा, किसी ने डाउट पूछा कि इज देयर ए रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन का उतना यह नहीं है, मतलब कोई पक्का रिलेशन नहीं है। देखो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कोई मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का कोरिलेशन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कहां से आएगा? समझ में आई बात? ओके, let me just show you once more. I already showed you before, but I am showing it again. ठीक है, मैं 3 ग्राफ बताऊंगा। ये एक ग्राफ है और एक ग्राफ cos x का है और एक ग्राफ है sin x का, माइनस sin x का। ओके, 3 ग्राफ है मेरे पास। तीन ग्राफ है। लेट मी टेक फ्रॉम जीरो से लेते हैं ग्राफ, ठीक है। ओके, तो थोड़ा एक्सपांड करके लेते हैं। ये ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ है, दिखाई दिया? जी सर। ओके, ये कौन सा ग्राफ है? cos x। cos ठीक है। x और ये कौन सा ग्राफ है? sin x माइनस sin x का। आपको कुछ आइडिया आया ये तीनों में रिलेशन क्या है? cos x, sin x और तो एक्चुअली वो जो ग्राफिंग सॉफ्टवेयर था उसमें तो फंक्शन x का डालना जरूरी था, बट यहाँ पे हम लोग जो है ना फंक्शन t का लेते हैं। क्या लेते हैं? फंक्शन t का फंक्शन लेते हैं। I'll show you। तो बेसिकली 3 ग्राफ है हमारे पास यहाँ पे, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। ये पहला वाला ग्राफ है ग्रीन ग्राफ था sin x का, ग्रीन ग्राफ था sin x का, ये sin x का ग्राफ था, ठीक है। ये है cos x का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? cos x का।
और ये है माइनस साइन एक्स का ग्राफ है। समझ में आई बात? तो 3 ग्राफ है मेरे पास, 1 ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ, ठीक है। तो 3 ग्राफ है। तो लेट मी टेल यू, ये पहला वाला ग्राफ कौन सा है, बोलिए? sin x, cos x, ये पहला वाला sin x है। साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो आई थिंक ये थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अभी हो गया, तीनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो 3 ग्राफ अलग अलग लेने थे मेरे को। ओके, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ओके, सो आई विल टेक ऑल दिस 3 ग्राफ। पहला वाला जो ग्रीन ग्राफ है ना, वो क्या है? साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। किसका ग्राफ है? sin x, ये तो मैं लिखता हूँ s इक्वल टू साइन टी, s इक्वल्स टू साइन टी। s मतलब क्या? s मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ये, ठीक है। और उसका डेरिवेटिव है v, v इक्वल्स टू हेलो 9 साइन का डेरिवेटिव क्या है? साइन का cos cos x, तो ये हो गया cos t, ये हो गया cos t। cos का डेरिवेटिव क्या है? माइनस -sin तो ये हो गया, इंक में लिखते हैं, a इक्वल्स टू माइनस साइन टी। अग्रीड? क्लियर? तो ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ये वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। समझ में आई बात? जी सर। साइन टी, कॉस टी एंड माइनस साइन टी। क्लियर? ओके, अब हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अब देखो, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, देखो दिखाई दिया ये? yes sir जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, तब वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव, पॉजिटिव थी। और एक्सेलरेशन क्या है? 0, 0। दिखाई दिया? ओके, अब एक और लाइन बताता हूं मैं। जी सर। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, बट वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है? 0। दिखाई दिया? yes sir ओके, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव है, जब वेलोसिटी क्या है? 0 है, और एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। दिखाई दिया? negative ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है? 0 है, एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। दिखाई दिया? ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये तो एक एग्जाम्पल है जहां पे मैं बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 होने पे वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, समझ गए? नेगेटिव भी हो सकती है। देखो, ये दोनों ही डिस्प्लेसमेंट 0 वाले हैं, ये वाला और ये वाला। लेट मी राइट इन ग्रीन कलर, अदरवाइज ये ग्रीन कलर में ले लेते हैं। लेट मी टेक दिस इन ग्रीन कलर। जहां पे ग्रीन कलर है, वहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, बट वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। समझ में आया? ठीक है। जहां रेड लाइन है वहां पे वेलोसिटी 0 है, जहां रेड लाइन है वहां पे वेलोसिटी 0 है।
वेलोसिटी 0 होने पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, समझ गए? क्लियर? जी सर। Yes, sir. So anything can be related in any manner. There is no rule. ये पॉजिटिव होने पे ये पॉजिटिव होना, वो पॉजिटिव होने पे वो पॉजिटिव होना, ठीक है? ऐसा कुछ रूल नहीं है। कोई भी चीज पॉजिटिव हो सकती है, कोई भी चीज नेगेटिव हो सकती है, कोई भी चीज 0 हो सकती है, कोई भी दूसरी चीज उसकी, वही सेम पार्टिकल की, समझ गए? दूसरा पैरामीटर, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव नेगेटिव 0, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव नेगेटिव 0, और 0 के लिए नेगेटिव पॉजिटिव 0, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ओके? जी सर। जी सर। Okay, fine. So this is just one example. Actually ये simple harmonic motion है, बाद में पता चलेगा आपको कि यहाँ पे जो है ना, acceleration is always exactly opposite of or equivalent of, you know, acceleration का जो magnitude होता है always opposite of displacement होता है simple harmonic motion में। दिखाई दिया आपको इधर? जब भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, एक्सेलरेशन नेगेटिव था। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एंड वाइस वर्सा। दिखाई दिया? जी सर। देखो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। क्लियर? ओके? जी सर। This is for simple harmonic motion, but it is not always true. It is not always true. सब मोशंस के लिए जो है ना, ये ट्रू नहीं है, ठीक है? क्लियर? ओके। So any doubts you have until now? Whatever we did. Yes. Okay, fine. So let us go to a couple of problems and I'll end the class. Today is Friday, right? Okay. अच्छा, ग्राफ्स तो समझ में आ गया ना? असाइनमेंट में ग्राफ्स, आप ग्राफ्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके? Okay. Okay, anyway, I'll ask you one question. If acceleration is given by ut, sorry, is given by at, acceleration क्या है? at है, then and initial velocity u, then v can be written as, बोलो। Now first tell me, is it uniform motion or non-uniform motion? Non-uniform. Non-uniform. Reason? Acceleration is variable. Okay. इसका मतलब v equals to u plus at does not apply. Do you agree? This equation does not apply. Do you agree? Reason? Because acceleration is variable. Acceleration variable है। ये किसके लिए है? ये Uniform motion के लिए. this is for uniform. This is for only uniform. But हमारा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में जो फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इनवैलिड है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अभी सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को a नहीं ले सकते क्योंकि a एक कांस्टेंट है। यहाँ पे a क्या है? a इज ए कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लेंगे? f लेंगे। क्या लेंगे? f। समझ में आई बात? तो I'll write let acceleration be f। क्यों लिया f मैंने? क्योंकि a क्वेश्चन में दे दिया किसी और चीज को, ठीक है? इसका मतलब अभी a बचा नहीं यूज करने के लिए, तो मैंने क्या लिया? f लिया। क्लियर? समझ में आई बात? तो आप क्या लिखोगे? df by, ओके, तो f इक्वल टू क्या लिखोगे? Therefore dv by dt
नहीं नहीं, f इक्वल्स टू ओके df dv by by dt विच इज इक्वल टू क्या दिया उसने 80। समझ में आई बात? यहाँ जी पे सर। a क्या है? कांस्टेंट है। a क्या है? कांस्टेंट है। अभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अब तक हम लोग अब तक जितने भी बार हमने a यूज किया वो एक्सेलरेशन के लिए यूज किया, बट इस प्रॉब्लम में a क्या है? एक्सेलरेशन नहीं है। इस प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन क्या है? 80 है, 80। और a क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आई बात? ओके, नाउ लेट अस सॉल्व। क्या आ गया अपने को? डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद क्या करें? बोलिए। Separate variables. वेरी गुड। dv by dt इक्वल्स टू 80 हो गया। अब सेपरेट वेरिएबल्स कैसे सेपरेट करें? बोलो, जल्दी से बोलो। dv equals to a dt. वेरी गुड। dv इक्वल्स टू 80 dt, 80 dt। समझ में आई बात? उसके बाद क्या करें? अप्लाई इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड्स। समझ में आया? जी सर। अप्लाई कर दिया। अच्छा, u v इसके लिमिट्स क्या है? u टू v इसके लिमिट्स हमेशा है 0 टू t। तो 0 यहाँ to पे t। पहला इंटीग्रल क्या आएगा? 1 का इंटीग्रल क्या है? Sir, v. 1 का इंटीग्रल है v। लिमिट्स क्या डालोगे? u to v. u टू v इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? बोलो। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? जी सर। t. dt 0 टू t बचेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? v माइनस यू इक्वल्स टू a। t का ADT। इंटीग्रल क्या है? t का इंटीग्रल क्या है? t. t t square. स्क्वायर t square by 2। t स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स क्या डालोगे? 0 टू t। क्लियर t। हो गया? तो अब क्या आ गया? v इक्वल टू क्या आया? बोलो जल्दी से। u प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बाय 2। समझ में आया? Yes, sir. जी सर। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं आया, v इक्वल टू यू प्लस 80 स्क्वायर बाय 2 आया। क्लियर? अब लेट अस कंटिन्यू। व्हाट इज v? कैन बी रिटन एज, बोलिए। ds by dt। ds by समझ में आया? तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? बोलो। देयरफॉर ds by dt इक्वल्स टू, बोलिए, u प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। समझ में आया? जी सर। अब क्या करेंगे? आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करो? बोलिए। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। variables. तो क्या आएगा? ds इक्वल्स टू u प्लस 80 Half. square by 2 into हाफ dt. 80 स्क्वायर लिखो जी सर। Yes, sir. इंटू dt लिखो। जी सर। इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स अप्लाई। तो क्या आएगा? 0 to s. 0 टू s ds इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ u dt एक आएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ हाफ a t स्क्वायर dt एक आएगा। समझ में आई बात? दो अलग अलग कर दिया मैंने, एक स्टेप निकाल दिया। 0 टू t, 0 टू t। अब बोलिए, इधर क्या आएगा? इंटीग्रल Sir, s. ऐसा आएगा, क्योंकि 1 का s है। 0 टू s, u कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा? 1। समझ में आया? dt। तो एक स्टेप लिख देता हूं मैं, प्लस यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा? a/2 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा? जी सर। समझ में बात? t square by
हाँ बोलो क्या आएगा? S equals to UT plus तो यहाँ पे आएगा S इक्वल्स टू, यहाँ पे UT आएगा, डू यू अग्री? yes, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? A by 2 A by 2 T cube by 2. T क्यूब by 3, वेरी गुड, T क्यूब by, समझ में आया? एक और स्टेप कर देते हैं। एक और स्टेप कर देते हैं, बोलो लास्ट स्टेप बोलो। S इक्वल टू क्या लिखूं? UT प्लस 80 1/6 A T क्यूब। समझ में आई बात? जी सर। ये है, देखो इक्वेशंस अलग है। V इक्वल टू U प्लस 80 नहीं आया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर नहीं आया, अलग आया। रीजन क्या है? बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के लिए वो फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, हम लोगों को नए फॉर्मूले ये करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? जी सर। Your voice is not clear, just type. ओके, होमवर्क के लिए कर लो। Can we use this formula for any non-uniform equation? No. It is only for this non-uniform equation. अभी जो problem दिया मैंने उसके लिए कुछ और equation आएगा, क्योंकि this is not something into t, this is something into t square. You cannot use that formula. Non-uniform motion के लिए हर situation में अलग formula आएगा. Then find the displacement. velocity, comma, displacement. As functions of time. Actually मैंने जो 2 assignments दिए 100 problems और 100 problems के, if you do that then you can score full marks in your exam. ठीक है, clear? So try to complete each and every problem in that. And then you attend the exam. Clear? So I'm stopping the class now. We'll continue tomorrow. Clear? Okay sir. Okay. Okay, I'll upload this. Just check this. Go through this well. Understand well. Okay? Okay, sir. Thank you sir. Okay, thank you. Thank you I sir. love this, sir. Thank you sir. Thank you. Thank you sir.